میرا نام فرحانہ ہے اور میرا تعلق ایک اونچے گھرانے سے تھا۔ کہتے ہیں ہمیشہ انسان کی پہچان اس کی صحبت سے ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ دوست بنانے میں جلدی نہ کرو، سوچ سمجھ کر دوست بناؤ۔ میری منگنی میری خالہ زاد سے ہوئی تھی جو کہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن جب سے میری دوستی تبسم سے ہوئی، اس نے مجھے یہ احساس دلانا شروع کیا، رشتہ ہمیشہ برابری میں ہی کرنا آگے کی زندگی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ پہلے پہل تو میں ان باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیتی، لیکن رفتہ رفتہ مجھے اپنا منگیتر برا لگنے لگا۔ اسی بیچ میری ملاقات ایک لڑکے عادل سے ہوئی، جو میرے باپ کی فیکٹری میں پارٹنر تھا۔ مجھے وہ اچھا لگنے لگا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ لیکن آنکھ تو میری اس دن کھلی جب ایک دن وہ میرے بابا کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ وہ میرے بابا سے کہنے لگا کہ وہ تو فرحانہ میرے تایا کی بیٹی تھی، لیکن اس سے میری دوستی کا ناتا تھا۔ وہ مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ ہم آپس میں کزن تو ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر دوست ہیں، اور دوست ایک دوسرے کا آئینہ ہوتے ہیں۔ بس میری زندگی تمہاری دوستی کے آئینے میں ہمیشہ شفاف ہی رہے گی۔ یہ بات وہ تب کہا کرتی تھی جب 13 برس کی تھی۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب لڑکیاں عموماً اپنے سپنوں کا تخت سجاتی سنوارتی ہیں اور اس پر کسی من موہنے کو شہزادہ بنا کر بٹھا لیتی ہیں اور خود کو اس کی ملکہ تصور کرنے لگتی ہیں۔ لیکن فرحانہ کے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ اس کا ذہن بہتے چشمے کی طرح صاف شفاف تھا۔ ایسے میں اس کی منگنی خالہ زاد ریان سے کرتی گئی۔ سادہ دل، معصوم صورت اور اچھی سوچ رکھنے والی لڑکی کی معصوم سوچ میں کسی ہمسفر ساتھی کے تصور کی کھڑکی کھل گئی، کیونکہ منگنی کے بعد یقیناً اس کے ذہن میں شادی کا تصور بھی اجاگر ہوا۔ اس نے اب اس اسٹیج پر خواب دیکھنے شروع کیے۔ اتفاق کے انہی دنوں فرحانہ کی کلاس میں ایک نئی لڑکی داخل ہوئی جس کا نام تبسم تھا۔ اس لڑکی سے فرحانہ کی دوستی ہو گئی۔ یہ لڑکی بہت اونچے خواب دیکھنے کی عادی تھی۔ اس نے ہی فرحانہ کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ تم نے کہاں غریبوں میں منگنی کروا لی ہے، ساری عمر چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترسو گی، ابھی بھی وقت ہے، ریان سے شادی سے انکار کر دو۔ میری کزن اس کی باتیں سنتی اور چپ رہتی۔ تبسم سے اس کی دوستی اتنی بڑھ گئی کہ وہ فرحانہ کے گھر بھی آنے جانے لگی۔ ایک روز وہ آئی تو اتفاق کے ریان بھی آیا ہوا تھا۔ تبسم نے ریان کو دیکھا اور برا سا منہ بنا لیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے فرحانہ کے خوب کان بھرے کہ تم تو بڑی بے وقوف ہو، ایک تو غریب خالہ زاد سے منگنی کروا لی اور صورت بھی نہ دیکھی۔ چلو خوبصورت ہی ہوتا تو کوئی بات تھی، غرض اس نے میری کزن کا دل خوب برا کر دیا۔ اب وہ بھی سوچنے لگی کہ جس پر تبسم اسے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک دن اصرار کر کے وہ فرحانہ کے ساتھ ریان کے گھر بھی گئی۔ اسے خالہ کے گھر کا رہن سہن بھی نہ بھایا۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ متوسط طبقے سے تھے تو رہن سہن بھی اپنی حیثیت کے مطابق رکھا ہوا تھا۔ اب وہ ہر وقت یہی کہتی کہ ریان تمہارے قابل نہیں ہے فرحانہ، دیکھو تو تم کتنی خوبصورت ہو، تمہارے لیے امیر اور خوبصورت لڑکوں کی کمی نہیں ہے، لڑکیوں کو ایسے گھر میں شادی کرنا چاہیے جو اس کے خوابوں کے عین مطابق ہو، ایسے گھر کا انتخاب ہو جہاں تمہارے خواب اور خوشیاں پوری ہوں۔ تبسم کے یہ خیالات تو دراصل اپنے متعلق تھے، لیکن وہ رفتہ رفتہ فرحانہ کو بھی فریب کی اس وادی میں لے گئی۔ یوں میری کزن حقیقتوں سے دور ہوتی گئی۔ اب جب بھی میں اسے ملتی وہ کہتی، سارا، میں ریان سے شادی کر کے اپنی زندگی مفلسی کی مٹی میں ملانا نہیں چاہتی۔ میں سمجھاتی کہ وہ نیک لڑکا ہے، قابل ہے، کماؤ ہے، کیا ہوا کہ ابھی چھوٹی پوسٹ پر ہے، عمر بھی تو اس کی کم ہے، رفتہ رفتہ ترقی کر کے بالآخر ایک روز بڑے عہدے تک پہنچ جائے گا۔ تمہارے خالو رزق حلال کماتے ہیں تو دولت کی ریل پیل نہیں ہے، اور وہ جس سیٹ پر ہیں اگر رشوت لینے لگیں تو وارے نیارے ہو جائیں گے، ان کا اپنا گھر ہے۔ کہنے لگی، اس کو تم گھر کہتی ہو، 5 مرلے کا بھی کوئی گھر ہوتا ہے، نہ لان نہ کھلا صحن، اف میرا تو دم گھٹ جائے گا وہاں۔ میں سچ کہتی ہوں کہ ریان سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ جس شریک سفر کی شخصیت میرے خیالوں میں سما گئی ہے وہ ریان نہیں کوئی اور ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ کہا کہ وہ کون ہے نہیں جانتی، کیونکہ میں نے خود بھی اس کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ فرحانہ کے والد بزنس مین تھے، ان کا کپڑے کا کام تھا، وہ ہول سیل کا کام کرتے تھے، ایک فیکٹری بھی تھی۔ میری کزن بنگلے میں رہتی تھی، پھر بھی اس کے والدین کو اپنے سے کم حیثیت رشتہ داروں سے لگاؤ تھا اور وہ دل سے ان کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے بیٹی کا رشتہ اگر ریان کو دیا تھا تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی دیا تھا۔ ریان قبول صورت اور فرما بردار لڑکا تھا، مستقبل میں ترقی کے روشن امکان تھے، لیکن فرحانہ تو بس اپنے
बड़े घर से भी ज़्यादा बड़े घर में जाना चाहती थी और मैं हैरान होती थी कि ये इसे क्या हो गया है। मैंने इसको बहुत समझाया, मगर तबस्सुम की दोस्ती इसके सर चढ़कर बोल रही थी, सो वो मेरी बातों को खातिर में नहीं लाती थी। इन्हीं दिनों रियान की अम्मी घर आईं। वो फरहाना को बहुत चाहती थीं और इसको एक साबिर और शाकिर लड़की समझती थीं। इनका ख्याल था कि वो आकर इनका घर संवार देगी। वो हर पल इस पर वारी जाती थीं। वो नहीं जानती थी कि इनकी ये भांजी किन हवाओं में परवास कर रही है। वो ख्वाहिश की पड़ लगाकर उड़ती हुई हिर्स व हवस के आसमान की उस बुलंदी तक जा पहुंची कि जहां तवाज़ुन बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। खाला ने शादी की तारीख मांग ली तो ताया जी ने 1 साल के बाद रुखसती के लिए कह दिया ताकि फरहाना पढ़ाई मुकम्मल कर ले। खाला ये कहकर चली गईं कि ठीक है, हम 1 साल इंतज़ार कर लेंगे, मगर मैं साल बाद बारात लेकर आऊँगी। इनके जाने के बाद वो मेरे पास आई, बोली कि खाला ने शादी की तारीख मांगी है, मैं बहुत परेशान हूँ। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? ये तो खुशी की बात है कि तुम्हारी शादी हो रही है। वो बोली, सब कुछ जानते बूझते तुम मेरे जख्मों पर नमक पाशी कर रही हो। अच्छा, तो फिर तुम सीधे से जाकर अपनी माँ से बात कर लो और जुर्रत के साथ जो तुम्हारे दिल में है कह गुजरो। इन्हीं दिनों मेरे एक कज़न की शादी थी, सो हम मुल्तान चले गए कि वहाँ शादी के हंगामे में फरहाना का ख्याल ना रहा। मैंने मुल्तान इससे राब्ता ना किया। हमें वहाँ 15 दिन लग गए। इस दौरान जाने क्या बात हुई कि ताया जान ने इसकी शादी की तारीख दे दी। मैं वापस आकर इससे मिली। वो बहुत परेशान थी। परेशानी किसी नादान को लाहक हो तो बना बनाए काम को भी बिगाड़ जाती है और इंसान उजलत में कोई गलत कदम भी उठा लेता है। इसने भी परेशानी में एक गलत शख्स का इंतखाब कर लिया था। बेशक वो इसके वालिद के अंडर काम करता था, लेकिन फरहाना के लिए तो एक बंद किताब की मानित था। उसका नाम आदिल था और ताया जी की फैक्ट्री में मैनेजमेंट का काम सीख रहा था। ये इनके बिजनेस पार्टनर का लड़का था और कभी कभार किसी काम से घर पर भी इनके पास आ जाता था। एक रोज़ वो घर आया तो ताया अब्बा घर पर ना थे, बल्कि सारे घर वाले भी किसी तकरीब में गए हुए थे। पेपर्स की तैयारी के बाइस फरहाना घर पर थी। आदिल ने दस्तक दी। फरहाना ने दरवाज़ा खोला और पहली ही नज़र में इस खूबरू नौजवान के हुस्न जमाल से मुतासिर हो गई। इसको खबर थी कि ये इसके वालिद के शरीक कारोबार का इकलौता बेटा है और बहुत मालदार घराने से है। सोचा अब तक इसके बारे में क्यों गाफिल थी, कभी इसको गौर से देखा भी नहीं, क्योंकि आज के दिन ही इसकी शानदार शख्सियत का सहर महसूस किया। इसके दिल ने आदिल का इंतखाब कर लिया, शायद इसलिए कि रियान के साथ शादी से बचना चाहती थी। इस तेज तरार लड़के ने फरहाना की नज़रों में अपने लिए पसंदीदगी के एहसास को भांप लिया। उस रोज़ तो वो चला गया कि घर में कोई ना था। अकेली होने के सबब फरहाना ने आने के लिए ना कहा, लेकिन बाद में वो ताया जी का खाना लेने के बहाने आने लगा। जिस रोज़ ड्राइवर इनके दीगर कारोबारी कामों में मसरूफ़ होता तो आदिल खाना लेने आ जाता, क्योंकि इसके पास अपनी गाड़ी थी। खाना फरहाना पैक करके देती। इस तरह इन दोनों की आपस में बातचीत हो जाती। पहले वो हफ्ते में एक आध बार आता, फिर रोज़ आने लगा। शायद ताया इस पर ज़्यादा एतबार करते थे कि बाज़ नौकर खाने को रास्ते में चख भी लेते थे। एक दिन आदिल घर आया तो घर में कोई ना था। तभी फरहाना ने इसको गेस्ट रूम में बैठने को कहा, क्योंकि वो बाहर की जानिब था। इसने पूछा, आंटी कहाँ गई हैं? वो बराबर में गई हैं, फरहाना ने जवाब दिया। जब खाने की तैयारी के मरहले में थोड़ी सी देर बाकी रह जाती तब तक वो आंटी से बातें करता रहता। बाहर बहुत गर्मी थी। इसने पानी मांगा। फरहाना कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डालकर ले आई। आज आदिल इसे बहुत गौर से देख रहा था। इसकी तेज़ नज़रों से वो कुछ घबरा गई। वो भी इसे देखने में इस कदर महव था कि ग्लास को ठीक तरह से पकड़ ना पाया और मशरूब छलक गया। तभी ग्लास भी इसके हाथों से छूट गया। शरबत कपड़ों पर गिरा तो इसके कपड़े खराब हो गए। फरहाना ने शर्मिंदा होकर कहा, माफ़ करना, ये मेरी गलती से हुआ है। इसकी बुखलाहट पर वो मुस्कुरा दिया। बहरहाल मज़ीद कुछ कहे बगैर वो खाना लेकर चला गया। वो यही समझी कि आदिल नाराज़ होकर गया है। वो देर तक शर्मिंदगी महसूस करती रही। अगले दिन ताया जी की तबीयत ख़राब हो गई। वो फैक्ट्री ना गए। तभी आदिल ये मालूम करने इनके घर आया कि आज क्यों नहीं आए। जब ताया जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, दोनों माँ बेटी ड्राइवर को देखने घर से बाहर आईं। देखा कि आदिल अपनी गाड़ी से उतर रहा है। इनको परेशान देखकर पूछा, खैरियत तो है? हाँ, तुम्हारे अंकल की तबीयत बहुत ख़राब है बेटे, इसी वजह से परेशानी हो रही है। आदिल को वो अंदर ले आईं। इसने अंकल को देखते ही कहा कि ड्राइवर का इंतज़ार ना करें, मैं इनको अपनी गाड़ी से अस्पताल लिए चलता हूँ।
वो सहारा देकर ताया जी को गाड़ी तक लाया और फौरन इनको अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने इनको दाखिल कर लिया। वो वापस आकर आंटी और फरहाना को भी अस्पताल ले गया। इन दोनों पर ऐसे वक्त में बड़ा एहसान किया। वो रात तक ताया जी के पास ही रहा। फरहाना ने इसके इस एहसान को अपने दिल में जगह दे दी। अब फरहाना को आदिल बहुत अच्छा लगने लगा। वो बेचैनी से इसका इंतज़ार करती। ताया जी अस्पताल में थे और आंटी इनके पास होती। आदिल घर आता, फरहाना से अंकल के लिए खाना ले जाता। इस दौरान वो किचन में आ जाता और इसके साथ बातें करता रहता। जब वो सूप वगैरह तैयार कर रही होती, वो इसकी बातों के जवाब में हूँ हाँ करती रहती। तब इसने कहा, क्या बात है फरहाना, आप बोलती कम हैं। हालांकि आपकी आवाज़ ऐसी है कि बार बार सुनने को दिल चाहता है। इस पर बेइख्तियार वो बोल पड़ी, बातें सिर्फ ज़बान से ही नहीं की जाती। क्या आप निगाहों की ज़बान नहीं समझ सकते? ये इसने बेबाकी के साथ बड़ी बात कह दी थी। वो तो जैसे मौके की तलाश में था। कहने लगा, आप तो पहली नज़र में मेरे दिल में समा गई थीं। डरता था कि कुछ कह दिया तो आपको नागवार हुआ तो नाराज़ हो जाएंगी। जब से आपको देखा है, जीने का ढंग आ गया है। वो न जाने इस किस्म की और कितनी बातें करता रहा और फरहाना इन बातों की भूल भुलैया में गुम होती चली गई। इसके जाने के बाद भी वो गुमसुम बैठी रह गई थी। अगले दिन जब वो आया, इसने देखा कि फरहाना इनकी बातों के जाल में उलझ गई है। वो बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रही थी। इसने आते ही दूसरा जाल फेंका। कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अंकल की तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा है कि बेटी की फर्ज से जल्द सुबकदोश हो जाएं। क्या वाकई तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं तुमसे शादी को अपने लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी समझूंगा। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में कुछ इस अंदाज से दाखिल होते हैं कि हमको पता नहीं चलता कि वो कब हमारे दिल में आ समाते हैं। मेरा ख्याल है ऐसे लोग खुद ब खुद दिल की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। तुम भी बिला इरादा मेरे दिल पर काबिज हो चुकी हो। आप डायलॉग अच्छे बोल लेते हैं। ये कहकर तुम मेरे जज्बात की तौहीन कर रही हो फरहाना। आप जो भी कह लो, लेकिन मेरी आरज़ू को ठुकराने की बात मत करना। ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियों को देखा है, मगर नज़र इंतखाब तुम पर ठहर गई। मुझको तुम्हारा जवाब चाहिए। सोच कर बताऊंगी। उस वक्त अम्मी आ रही हैं, फरहाना ने कहा। उसी वक्त फरहाना ने फैसला कर लिया कि वो माँ से बात करेगी कि रेहान ही क्यों, इसकी जगह आदिल क्यों नहीं, इसमें क्या कमी है। इसने माँ से बात की। फरहाना की अम्मी हैरान रह गईं। बोली, क्या बात है, आज तुम इस कदर जज्बाती हो रही हो? वो खामोश रही। बेटी, माँ बाप के फैसले कोई अहमियत ना रखते या इनकी ज़रूरत ना होती तो अल्लाह ये रिश्ते ना बनाता। हर रिश्ते का अपना एक मकाम है, अपना तकद्दुस है। मैं मानती हूँ अम्मी के वालिदैन के फैसले बेटियों के लिए दुरुस्त होते होंगे, लेकिन आपके फैसले ने जीते जी मुझको जहन्नुम की आग में जलने के लिए छोड़ दिया है। फरहाना, तुम क्या कह रही हो? हमने तुम्हारे साथ कौन सा जुल्म किया है? आप सब ने मिलकर मुझको सारा जीवन जलने के लिए आग में धक्का दिया है। मैं हरगिज 3 कमरों वाले घर में ब्याह कर ना जाऊंगी। मुझको खाला के घर का सोचने से ही घुटन होती है। बेटी, क्या कह रही हो? रिश्ते मकीनों से होते हैं, मकानों से नहीं। रियान मेहनती लड़का है, एक ना एक दिन ज़रूर दूसरा बड़ा घर बना लेगा या नहीं बना पाएगा, अल्लाह जाने। लेकिन मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। माँ, आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाना होगी। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मेरी मदद कीजिए। माएँ अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करती, तो क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? इसकी मिन्नत समाजत पर ताई जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी। रात को सब खाने पर बैठे, फरहाना नहीं आई। माँ ने कहा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। खाना खाने के बाद ताई जी ने बात शुरू की कि फरहाना रियान से शादी नहीं करना चाहती है। वो कहती है कि ये मंगनी तोड़ दें वरना मैं कुछ खा लूँगी। इस पर बाप और भाई सिटपिटा गए। हैरान थे कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है कि वो गरीब घराने में शादी नहीं करना चाहती। इसके भाई गुस्से में आ गए, ये क्या बात हुई? भला ये भी कोई बात है? इसने ये कैसे कह दिया? हमारी इज्जत और गैरत का मामला है। मंगनी हो चुकी है, हमारी नज़र में रियान से अच्छा कोई नहीं है। अम्मी, आप इसको समझा दें कि वो जो चाहती है वो नहीं होगा। गुर्बत के अलावा रियान में क्या बुराई है और गुर्बत दूर हो सकती है। गरीब होना कोई ऐब नहीं। इनको अल्लाह ने इतना रिस्क दिया है कि इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अमीरी गरीबी मुस्तकिल रहने वाली चीज़ नहीं है। इनके ये दिन भी बदल जाएंगे। वालिद और भाई सुबह सब अपने अपने काम पर चले गए। फरहाना ने माँ से पूछा। ताई जी ने इसको रात वाली गुफ्तगू गोश गुजार कर दी।
समझाने की कोशिश भी की, वो किसी सूरत नहीं मानी। इसने फैसला कर लिया कि अगर उन्होंने इसकी बात ना मानी तो वो बगावत कर देगी। अगले दिन आदिल अंकल की तबीयत पूछने आया तो इसको देखकर फरहाना खुशी से गुलनार हो गई। जब से इसने आदिल की तवज्जो हासिल की थी, इसको ये घर और अपने घर के लोग पराये लगने लगे थे। वो सिर्फ आदिल को ही अपना समझती थी। आदिल ताई जी से मिला, वो बहुत परेशान थीं। इसने परेशानी की वजह पूछी, तब उन्होंने बता दिया कि फरहाना की मंगनी रियान से हो चुकी है और अब वो हमको परेशान कर रही है। ताई जी ने आदिल को घर का फर्द समझते हुए सारा अहवाल बता दिया और मदद की दरख्वास्त की। वो सारा किस्सा सुनने के बाद किचन में गया और फरहाना से बात की कि तुम्हारी अम्मी परेशान है, तुम क्या कहती हो? मैंने जो कहना था कह दिया है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी तो मैं फिर भी रियान से शादी नहीं करूँगी। अच्छा तो फिर तुम मंगनी तुड़वा लो। तुम्हारे वालिदैन नहीं मानते तो रियान से कह दो कि तुम इसको नापसंद करती हो और शादी नहीं करना चाहती। वो इतना ही अच्छा और नेक है तो ज़रूर तुम्हारी रज़ा की परवाह करेगा और ख़ुद मंगनी ख़त्म कर देगा। आदिल दोहरी चाल चल रहा था। इधर वो फरहाना की वालदा से कहता कि आपकी लड़की को समझा रहा हूँ, वो मान जाएगी, और उधर फरहाना को कहता कि फ़ौरन मंगनी तोड़ लो। मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मैं तुमको खुश रखूँगा। शादी के बाद हम घूमने जाएंगे, मैं तुमको सारी दुनिया की सैर करवाऊँगा। वो जब ये बातें सुनती इसके दिल में अरमान मचल उठते। इसको आदिल के अलावा दुनिया में और कुछ नज़र न आता। रियान इनके घर आया, इसने इसके साथ सीधे मुंह बात ना की। इसने पानी मांगा तो फरहाना ने मंगनी की अंगूठी ग्लास में डालकर इसको दे दी और कहा कि पानी की बजाय ये अंगूठी थी, उठा लो और गुस्सा पी लो, मैं तुमसे शादी नहीं कर रही। ये बात इसके भाई ने सुनी तो वो इसको मारने को लपका, लेकिन रियान ने इसे थाम लिया और माँ भी दरमियान में आ गई। रियान खामोशी से अंगूठी लेकर चला गया। ताई जी किसी को बताए बगैर आदिल के घर गईं और इसकी वालदा से बात की। उस खातून ने कहा, आपको गलत फहमी हुई है, हम अपने बेटे की शादी तय कर चुके हैं और आदिल को भी इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। अगले माह की 10 तारीख को इसकी शादी है। ये सुनकर ताई को सुकून मिला। वो घर लौटी तो किसी को ना बताया कि वो कहाँ गई थीं। मंगनी की अंगूठी रियान को वापस करने पर फरहाना के बड़े भाई ने इसको मारा तो इसे बुखार हो गया, लेकिन आदिल ना आया। वो तो अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था। फरहाना इंतज़ार करती रह गई, वो ना आया। और फिर एक दिन जब वो आया तो इसके हाथ में शादी का कार्ड था। वो सीधा ताया जी के पास गया और इनको कार्ड देकर कहा कि आप लोग मेरी शादी में ज़रूर आना। इसने फरहाना से बात तक ना की। इसके आने से जो शहनाइयाँ फरहाना के दिल में बजती थीं, वो अब सोग में तब्दील हो गईं। अब हर शय रोती हुई लगती थी। इसे लगा जैसे किसी ने इसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। इसके जिस्म से रूह निकल रही थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गई। ताई जी ने मुझे बुलवाया कि इसे देखो, इसने कमरा बंद कर लिया है। मैंने इसके भाई की मिन्नत की, इसने खिड़की तोड़ी, हम अंदर गए। वो बेहोश पड़ी थी, इसे अस्पताल ले गए। 2 दिन बाद इसे होश आया, डॉक्टर को तमाम अहवाल बताया तो इसने इसको सुकून की दवाइयाँ दी। वो 1 साल जेरे इलाज रही, तब कहीं जाकर कुछ नॉर्मल हुई। ताई जी और रियान की अम्मी तो आपस में सगी बहनें थीं। बहन ने बहन से बेटी की तरफ से माफ़ी तलब की। खाला ने माफ़ कर दिया और रियान को भी मना लिया। दोनों की शादी हो गई। कुछ अरसा फरहाना खोई खोई रही। ताया के पास पैसों की कोई कमी ना थी। उन्होंने एक बंगला खरीद कर इसको फर्नीचर से आरास्ता करके बेटी को जहेज में दिया। हर शय दी, यहाँ तक कि गाड़ी भी दी, और रियान को फैक्ट्री सौंप दी ताकि इनकी बेटी को अपने शौहर की गुर्बत का एहसास ना हो। यूँ अल्लाह ताला ने रियान को इसकी अच्छाई का समझ दे दिया और फरहाना को भी अच्छे बुरे की परख हो गई। इसको रियान से नफरत ना थी, नफरत तो तबस्सुम ने दिलाई थी, वो भी इसकी गुर्बत से। जब गुर्बत ना रही तो फिर नफरत कैसी? तो ये है इंसान की इन बुलंद सोचों की औकात। जो हिर्सो हवस के ताबे हों तो वो रेत के घरोंदों की तरह गिरते हैं। आज रियान ही फरहाना का सब कुछ है और इसको अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं। वक्त के साथ साथ रियान ने कारोबार को मजीद बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मर्द का रिस्क उसे उसकी बीवी के नसीब से मिलता है। माँ बाप के फैसले औलाद के लिए बेहतरीन होते हैं, लेकिन औलाद इस बात को तब समझती है जब वो नुकसान उठाती है। उन्होंने एक ज़िंदगी का वक्त गुजारा होता है और वो औलाद के लिए अच्छे और बुरे को समझते हैं। अल्लाह पाक भी माँ बाप के फैसलों में बरकत अता फरमाता है।